morning, dear students. How are you? Okay. In our today's lecture, we are going to read poem number 5th of General English. The name of the poem is Confessions of a Born Spectator. Jamandru Darshak. Born Spectator. Jamandru Darshak. This is written by Ogden Nash. So, dear students, there is one line on which the poet is paying too much stress. What is this line? This is line that you are not me and I am not you. कवि जो है वो सिर्फ इसी बात में संतुष्ट है कि जो आप हो वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो आप नहीं हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी लाइन पे ये सारी पोइम बेस्ड है. लेट अस रीड द मेन समरी, द होल समरी ऑफ दिस पोइम. सो डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन. As I told you before, the name of the poem is Confessions of a Born Spectator. This poem is written by Ogden Nash. So, in this poem, the poet makes fun of athletes. ये जो कविता है स्टूडेंट्स, ये एथलीट्स के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में है. इस कविता में कवि जो है वो खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता है. बट द फन इज लाइट हार्टेड. परंतु जो वो मजाक उड़ाता है, उनका मजाक बनाता है, वो हल्के फुल्के ढंग का है. He says that children, when they grow up, feel interested in different sports. वह बताता है कि जब वह बच्चा था तो जो बच्चे होते हैं उनका अलग अलग खेलों में इंटरेस्ट होता है. Some try to set new records in races. कुछ बच्चे जो होते हैं वो दौड़ों में अपना रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं. Others risk even serious injuries to win prizes in horse riding. वहीं दूसरी ओर दूसरे जो बच्चे हैं वो घुड़सवारी में मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं. Then there are boxers who injure each other with their punches. वहीं पे बॉक्सर्स हैं, मुक्केबाजी वाले हैं जो एक दूसरे को पंच लगाते हैं. The poet admires all the athletes who play for fun or hire. कवि उन्हीं सभी खिलाड़ियों को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है जो फन के लिए खेलते हैं. Sometimes his own ego urges him to show some heroic deed in sports. कभी कभी जब कुछ समय में उसकी अंतरात्मा जो है, उसकी ओन ईगो है, वो उसे कुछ वीरता वाले काम खेलों में करने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है. But then he shrinks back to see the violence of athletes towards each other. परंतु फिर वह खिलाड़ियों में होने वाली हिंसा को देखकर, सोचकर श्रिंक हो जाता है, सुंगड़ जाता है, घबराकर वहीं पे बैठ जाता है. He says that he can drink to the health of athletes. वह कहता है कि वह अपने खिलाड़ियों को, he says that he can drink to the health of athletes. वह कहता है कि वह खिलाड़ियों की प्रशंसा कर सकता है, उन्हें उनकी हौसला अफजाई कर सकता है. He can eat with them. वह उनके साथ खाना खा सकता है. But he cannot compete with them. परंतु उनका मुकाबला नहीं कर सकता. He would buy even costly tickets to watch the sportsmen play and jump in the stadium. वह बहुत कीमती, बहुत महंगी टिकटें खरीद सकता है खिलाड़ियों के खेल देखने के लिए, स्टेडियम में जंप करते हैं. But he would not change places with them. परंतु वो उन खिलाड़ियों के साथ अपना स्थान चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता. He is content to remain a spectator all his life.
अपनी पूरी जिंदगी में वह एक दर्शक बने रहने में वो संतुष्ट है। His weak spirit does not let him take part in any of the sports or games. उसकी कमजोर आत्मा है जो, वो उसे किसी भी खेल में, किसी भी गेम में हिस्सा लेने के लिए अनुमति नहीं देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज अबाउट एथलीट्स। देयर आर मेनी एथलीट्स who play for fun, who play for because they are higher, but the poet makes fun of them. He wants to watch them, he wants to watch their playing tricks. What he does not want to change his place with them, because he is contented in the place as a spectator. So dear students, let's read its central idea. As I told, in the first line you will write the name of the poem and the poet. So firstly we will write the poem. The poem Confessions of a Born Spectator is written by Ogden Nash. In this poem the poet makes fun of athletes, but the fun is light-hearted. It is not meant to be taken seriously. इस कविता में खिलाड़ियों के प्रति जो भी वार्तालाप किया गया है, जो भी कुछ बोला गया है, उसको गंभीरता से नहीं लेना है. इट इज जस्ट अ जोक. द पोइट लव्स टू वॉच द प्लेयर्स इन वेरियस कंटेस्ट्स. कवि जो है वो खिलाड़ियों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में उनके हिस्सा लेने को वो प्यार करता है, पसंद करता है. बट ही नेवर थिंक्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन देम हिमसेल्फ. परंतु वो खुद इसमें हिस्सा नहीं लेता, हिस्सा लेने के बारे में सोचता भी नहीं, कभी भी वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेता है. ही डज नॉट वॉन्ट टू हैव हिज बोन्स ब्रोकन एंड हिज बॉडी इंजर्ड. वह नहीं चाहता कि उसकी हड्डियां जो है वो टूटे और उसका शरीर जख्मी हो. He is content to remain a spectator. वो सिर्फ एक दर्शक बने रहने में संतुष्ट है. That you are not me and I am not you. मैं नहीं हूँ और मैं तुम नहीं हो. वो सिर्फ इसी बात से संतुष्ट है कि वो खिलाड़ियों को देख रहा है as a spectator. He does not want to participate in any type of game, because he wants to save his life, he wants to save his body. So dear students, you will write the central idea of this poem on your notebooks and also learn it. Thanks. Have a nice day.